5 6 7 اور اس کی اچھی طرح تیاری کر آئیے، اس کی ریڈنگ کی اچھی طرح تیاری کر آئیے، معنوں کو اچھی طرح دیکھ کر آئیے۔ باب زکوٰۃ الخارج من الارض، میرے خیال سے ابھی اس کے 3 سبق باقی ہے نا؟ ہاں 2 ہی رہ جائیں گے اس پہ۔ آج کے سبق کو شامل کریں گے تو 3 ہیں، ورنہ صرف 2 ہی ہیں۔ ہاں جی چلیے بسم اللہ شروع کریں۔ باب زکوٰۃ الخارج من الارض۔ باب زکوٰۃ الخارج من الارض، میں ترجمہ ریڈنگ کر لوں پہلے۔ وہو نوعان، غور سے سن لیں۔ وہو نوعان احدہما النبات فتجب الزکاة منہ فی کل حب وثمر یکال ویدخر۔ وہ نکال دیجئے، وہ کی جگہ اس کو کامہ بنا دیجئے۔ فتجب الزکاة منہ فی کل حب وثمر یکال ویدخر۔ وہ کون سا نکالنا؟ ویکال لکھ کر ہے نا، وثمرین کے بعد ویکالو ہے، تو ویکالو میں وہ نکال دیجئے، اس کی جگہ کامہ رکھیے، صرف یکالو ویدخر۔ اذا خرج من ارضه وبلغ 5 اوسق لقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس فی حب ولا ثمر صدقۃ حتى يبلغ 5 اوسق والوسق 60 ساعا والساع رطل بالدمشق وأوقية و5 أسباع أوقية فجميع النصاب ما يقارب 342 رطلا و6 أسباع رطلن یا رطلن دونوں لفظ استعمال ہیں، لیکن عام طور پر اس کو رطل بولتے ہیں عام طور پر، ورنہ وہ فتح کے ساتھ بھی استعمال ہے۔ ويجب العشر فيما سقي من السماء والسيوح ونصف العشر فيما سقي بكلفة كالدوال والنواضح وإذا بدا الصلاح في الثمار واشتد الحب وجبت الزكاة ولا يخرج الحب إلا مصفا ولا الثمر إلا يابسا ولا زكاة فيما يكتسبه من مباح الحب والثمر ولا فيما يأخذه أجرة لحصاده ولا يضم صنف من الحب والثمر إلى غيره في تكميل النصاب إلا أن يكون صنفا واحدا مختلف الأنواع كالتمور ففيها الزكاة أخرج من كل نوع زكاته وإن أخرج جيدا عن الرديء جاز له وله أجره. النوع الثاني المعدن، فمن استخرج من معدن نصابا من الذهب أو الفضة أو ما قيمة ذلك من الجواهر أو الكحل أو الصفر أو الحديد أو غيره فعليه الزكاة ولا يخرج إلا بعد السبك والتصفية ولا شيء في اللؤلؤ والمرجان والعنبر والسمك، مسك لکھ کر ہے، میم کو پہلے لکھے اس میں، سمکی بنا دیجیے، والعنبر والسمك ولا شيء في صيد البر والبحر وفي الركاز الخمس أي نوع كان من المال قل أو كثر لأهل الفيء وباقيه لواجده۔ باب زکوٰۃ الخارج من الارض، اس سے پہلے ہم جو پڑھ چکے ہیں وہ باب زکوٰۃ بہیمۃ الانعام، چوپایوں کی زکوٰۃ کا باب ہم پڑھ چکے ہیں۔ اب الخارج من الارض، زمین سے نکلنے والی چیزیں، زمین سے نکلنے والے چیزوں کی زکوٰۃ، زمین سے نکلنے والے چیزوں کی زکوٰۃ۔ میں پہلے صرف ترجمہ کرتا ہوں سوال کے بغیر، اور اس کے بعد پھر ہم لوگ جو تشریح کریں گے سوالات کے ساتھ۔ ہاں، باب زکوٰۃ الخارج من الارض، زمین سے نکلنے والی چیزوں کی زکوٰۃ، زمین سے نکلنے والی چیزوں کی زکوٰۃ۔ وہو نوعان، اور اس کی 2 قسمیں ہیں، وہو نوعان، اور اس کی 2 قسمیں ہیں۔ احدہما، ایک قسم ہے النبات، نباتات، زرعی پیداوار۔ النبات یا تو نباتات بولیے یا پھر زرعی پیداوار لکھیے بولیے، نہیں۔ فتجب الزکاة منہ،
उसमें ज़कात वाजिब है फ़ी कुल्लि हब्बिन व समरिन। फ़ी कुल्लि हब्बिन व समरिन, हब के असल माने दाने के हैं, हब के असल माने दाने के हैं, लेकिन यहाँ रखिए अनाज, अनाज का तर्जुमा कीजिए। अनाज में और फलों में, उसमें ज़कात वाजिब है अनाज में और फल में। फ़ी कुल्लि हब्बिन व समरिन, अनाज में और फल में। युकालु व युद्दखरु, जिसे नापा जा सकता हो और महफूज किया जा सकता हो, ज़ख़ीरा किया जा सकता हो। युकालु जिसे नापा जा सकता हो, व युद्दखरु और उसका ज़ख़ीरा किया जा सकता हो, उसे महफूज किया जा सकता हो। इज़ा अखरजा मिन अर्दिही, जब इज़ा खरजा मिन अर्दिही, जब वो उसकी ज़मीन में पैदा हो। इज़ा खरजा मिन अर्दिही, जब वो उसकी ज़मीन में निकले या ज़मीन में पैदा हो। व बलग़ खम्सता औसुक़िन, और उसकी मिक़दार 5 वसक़ को पहुँचे, उसकी मिक़दार 5 वसक़ को पहुँचे। खम्सत औसुक़िन 5 वसक़ को कहते हैं, उसकी मिक़दार 5 वसक़ हो जाए। लिक़ौल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान की वजह से। लैस फ़ी हब्बिन वला समरिन सदक़तुन, किसी अनाज और फल में ज़कात नहीं है। हत्ता यबलुगा खम्सत औसुक़िन, यहाँ तक कि वो 5 वसक़ को पहुँच जाए। लैस फ़ी हब्बिन वला समरिन सदक़तुन, किसी अनाज और फल में ज़कात नहीं है। हत्ता यबलुगा खम्सत औसुक़िन, यहाँ तक कि वो 5 वसक़ को पहुँच जाए। वल वस्क़ु सित्तून साअन, वस 60 सा है, 60 सा है। मैं समझाऊंगा उसको जब हम उसमें जाएंगे शरह में। वल वस्क़ु सित्तून साअन, और वस 60 सा होते हैं। वस्साउ रितलुन बिद्दिमश्की, और दिमश्की रितल है। सा एक रितल है दिमिश्क के एतबार से, दिमिश्की रितल यानी दिमश्क का, क्योंकि रितल 2 तरह के हैं, एक इराक़ी और दूसरा दिमिश्की, दिमश्क का रितल है। वो औक़ियतुन व खम्सतु अस्बाई औक़ियतिन, और एक औक़िया और 7वीं औक़िया के 5 हिस्से, यानी औक़िया का 7वां हिस्सा करें, उसके बाद 5 हिस्से के, औक़िया के 7वें हिस्से के 5 हिस्से, 7वें हिस्से के 5 हिस्से, क्योंकि ये वज़न है तो इसलिए जो है बड़ी मुश्किल के साथ उसको वो कर रहे हैं, मतलब कि एक एक चीज़ को जो है वाज़ेह करना पड़ रहा है। वस्सा रितलुन, और सा रितलुन बिद्दिमश्की, दिमश्की रितल है। वस्साउ रितलुन बिद्दिमश्की, और सा दिमश्की रितल है। वो औक़ियतुन व खम्सतु अस्बाई औक़ियतिन, और एक औक़िया और औक़िये के 7वें हिस्से के 5 हिस्से। फ़जमीउ निसाबी, पूरा निसाब, मा युक़ारिबु 342 रितलन, 342 रितल के करीब है। और पूरा निसाब कितना है? मा युक़ारिबु 342 रितलन, 342 रितल के करीब है। वो सित्ततु अस्बाई रितलिन, और एक रितल के 7वें हिस्से के 6 हिस्से, रितल के 7वें हिस्से के 6 हिस्से। क्योंकि ये वो औज़ार अभी इस्तेमाल नहीं होते, तो इसलिए जो है उसको जो है समझना ही बहुत मुश्किल है। और फिर उसके मुकाबले में आज के जो औज़ान है उसमें हम लोग आसानी से समझ सकते हैं उसको। वह यजिबुल उश्रु, ये तो हो गया निसाब का मामला। वह यजिबुल उश्रु, अब यहाँ जो है कितनी मिक़दार में ज़कात देंगे वो बात शुरू हो रही है। वह यजिबुल उश्रु, और उश्र वाजिब है, 10वां हिस्सा वाजिब है। फ़ीमा सुक़िया मिनस समाई, जो आसमान के पानी से सैराब किया जाए उस खेत में, उन खेतों में, अगर आप वज़ाहत कर लें ज़्यादा अच्छा है। वह यजिबुल उश्रु, और उश्र वाजिब है। फ़ीमा सुक़िया मिनस समाई, उन खेतों में जो आसमान के पानी से सैराब किए जाएँ। वह सुयूही, और ज़मीन के बहते हुए पानी से। सुयूह कहते हैं वो जो ज़मीन की सतह पर पानी बहता है, वो पानी जो ज़मीन की सतह पर बहता है, और ज़मीन पर बहने वाले पानी से। वो निस्फ़ुल उश्री, और निस्फ़ुल उश्र, निस्फ़ उश्र है, यानी कितना, 20वां हिस्सा बोलेंगे इसको, 10, इसको 20वां हिस्सा हो जाएगा। निस्फ़ उश्र करेंगे तो 20वां हिस्सा, वो 10वां हिस्सा है और ये 20वां हिस्सा है। किस सूरत में? फ़ीमा सुक़िया बिकुल्फ़तिन, जिसको खर्च और मेहनत से जिसे सैराब किया जाए। कुल्फ़ा तकलीफ या जिसमें खर्च है, दोनों चीज़ें, खर्च और मेहनत दोनों चीज़ें मिलकर कुल्फ़ा होते हैं।
खर्च सर्फ जिसे पैसा खर्च करते हैं इंसान, खर्च। वो निस्फुल उशरी और 20वां हिस्सा है फीमा सुख या उन खेतों में जिन्हें सैराब किया जाए बिकुलफतिन मेहनत और खर्च से, कद दवाली कद दवाली जैसा कि रहट। देखिए दवाली कहते हैं खेत में पानी देने के लिए जो बैल चलाते हैं, बैल से खेतों को बैल पर पानी लेकर खेतों को सैराब करते हैं, उसको रहट बोलते हैं, रहट बोलते हैं। यानी बैल पर पानी लेकर उसके ज़रिए खेतों को सैराब करते। तो डिक्शनरी में उसका तर्जुमा लिखा है खेती में पानी देने का रहट जिसे बैल चलाते हैं। ये डिक्शनरी में तर्जुमा लिखा हुआ है, अल-क़ामुसुल वहीद डिक्शनरी में इसका तर्जुमा लिखा है खेती में पानी देने का रहट जिसे बैल चलाते हैं। ठीक, हाँ ये तो खैर वाज़ेह है, लेकिन क्या है कि ठीक तर्जुमा मुझे आपको देने के लिए वहाँ से देखना पड़ता है अवकात में, ताकि आप कोई ऐसी चीज़ ना हो जो आपको समझ में ना आ सके, कुछ ऐसे अल्फाज हों जो समझ में ना आ सके, तो वो अल्फाज देखना ज़रूरी होता है और वो बहुत ज़रूरी है ताकि तलबा सही तौर पर उसको समझ सके। वन नवादिही और वन नवादिह ये नादिह की जमा है, और नादिहुन की जमा है, नादिहुन की जमा है नवादिह, और उसके माने हैं ऊँटों के ज़रिए खेतों को सैराब किया जाए, ऊँटों पर पानी लेकर खेतों को सैराब करना, नवाज़ह का दवाली व नवादह, जैसे कि दवाली ही और नवादह हैं, यानी वो खेत जिनको खर्च या मेहनत से सैराब किया जाए, जैसे जिन्हें बैल और ऊँट के ज़रिए सैराब किया जाता है। ये हम तर्जुमा कर सकते हैं। जब आपके पास सामने दवाली और नवाज़ह का तर्जुमा वाज़ेह हो गया तो उसके बाद तर्जुमा ये करना काफ़ी है कि जैसा कि वो खेत हैं जिन्हें बैल और ऊँटों के ज़रिए पानी दिया जाता है। व इज़ा बदस सलाहु फिस्सिमारी, जब फलों में पुख्तगी आ जाए, जब फलों में पुख्तगी ज़ाहिर हो जाए। व इज़ा बदस सलाहु, यहाँ सलाह माने सलाहियत के है, लेकिन यहाँ तर्जुमा है पुख्तगी, पुख्तगी जब फलों में ज़ाहिर हो जाए। वश्तद्दल हब्बु, और अनाज में सख्ती आ जाए, दानों में सख्ती आ जाए, क्योंकि इससे पहले बताए थे आपको कि दो ही चीज़ों में ज़कात होगी, एक तो अनाज में और दूसरा फलों में। फलों की ज़कात कब वाजिब होगी? व इज़ा बदस सलाहु फिस्सिमारी, जब फलों में पुख्तगी आ जाए। वश्तद्दल हब्बु, और अनाज में सख्ती आ जाए। वजबतिज़ ज़कात, ज़कात वाजिब हो गई, उस वक्त ज़कात वाजिब होगी। वला युखरिजुल हब्बा इल्ला मुसफ़न, और अनाज की ज़कात नहीं निकालेंगे मगर साफ, पाक व साफ, अनाज की ज़कात नहीं निकालेंगे मगर पाक व साफ होने के बाद या पाक व साफ करने के बाद। वला समरा, और ना फलों की ज़कात इल्ला याबिसन, मगर खुश्क होने के बाद, फलों की ज़कात उनके खुश्क होने के बाद निकालेंगे, क्योंकि ऊपर बताया गया कि ऐसे फल हैं जिनको ज़ख़ीरा किया जा सकता है। तो ज़ाहिर है कि जब फल को ज़ख़ीरा किया जा सकता है तो वो फल होंगे जो जैसे कि अंगूर है जो मुनक्का या किशमिश बन जाता है, तो उनके खुश्क होने के बाद निकाली जाएगी। उसके बाद कहते हैं वला ज़कात फ़ीमा यक्तसिबुहु, और ज़कात नहीं वाजिब होगी जिसको वो कमाता है, मिन मुबाहिल हब्बी व समरी, मुबाह तरीक़े से, खा वो अनाज हो या फल हो, वो अनाज और फल जो जिसको वो मुबाह तरीक़े से कमाता है उसमें ज़कात वाजिब नहीं होगी। मैं समझाऊंगा इसका मफ़हूम क्या है। वला ज़कात फ़ीमा यक्तसिबुहु मिन मुबाहिल हब्बी व समरी, और जिसको वो कमाता है मुबाह तरीक़े से, खा वो फल खा वो अनाज हो या फल, उसमें ज़कात वाजिब नहीं होती। वला फ़ीमा याख़ुज़ुहु उजरतन लिहसादिही, और ना उसमें जिसको वो उजरत के तौर पर लेता है खेती की वजह से, फसल को काटने की वजह से, और ना उसमें जिसको वो उजरत के तौर पर लेता है फसल को काटने की वजह से। किताब में वला फिल लिक़ाती भी है। हाँ किताब में अगर है जी हाँ, वला फिल लिक़ाती का तर्जुमा होगा वो जो गिरे हुए अनाज या उसको उठा लेता है, गिरे हुए। लुक़ाता के माने में है वो, उसके माने है गिरा हुआ, यानी गिरे हुए अनाज को जो उठा लेता है, मतलब उसके मालिकों ने छोड़ दिया, कुछ अनाज गिरा हुआ था खेतों में, उसके मालिकों ने छोड़ दिया तो उसने उठा लिया, तो उसमें भी ज़कात वाजिब नहीं होती। नहीं, ये जुमला क्या था आखिरी आप बता रहे थे? वलल लुक़ात की उसमें जिसमें वो उजरत के तौर पर लेता है फसल का खेती, फसल को काटने के बदले में, फसल को काटने के बदले। वाज़ेह हो गया। वला युदम्मु सिन्फुन मिनल हब्बि व समरी इला गैरिही, और नहीं मिलाया जाएगा और नहीं जमा किया जाएगा। सिन्फुन मिनल हब्बी, एक किस्म के अनाज को, व समरी,
اور پھلوں کو الا غیرہ دوسری قسم کے اناج یا پھلوں سے، ایک قسم کے اناج یا پھلوں کو دوسری قسم کے اناج یا پھلوں سے نہیں ملایا، یعنی ایک قسم کے اناج کو دوسری قسم کے اناج سے نہیں ملایا جائے گا، ایک قسم کے پھلوں کو دوسری قسم کے پھلوں سے نہیں ملایا جائے گا۔ ولا یضم اور نہیں ملایا جائے گا صنف من الحب ایک قسم کے اناج کو، والثمر اور ایک قسم کے پھلوں کو، الی غیرہ دوسری اس کے علاوہ سے یعنی دوسری قسم کے اناج یا پھل سے، فی تکمیل النصاب نصاب کو مکمل کرنے کے لیے، فی تکمیل النصاب نصاب کو مکمل کرنے کے لیے، الا ان یکون صنفا واحدا سوائے اس کے کہ کوئی سوائے یہ کہ وہ ایک صنف ہو مختلف انواع جس کے انواع مختلف ہوں، سوائے ایسی صنف کے جس کی انواع مختلف ہوں، ایک ہی جنس ہے لیکن اس کے نوع مختلف ہیں، جیسے کہ مثال دے رہے ہیں کتموری، جیسے کہ کھجور ہیں، کھجور میں جو ہے امبری بھی ہیں، کھجور میں مختلف ناموں کے کھجور ہیں، سکری ہے وغیرہ وغیرہ۔ ففیہ الزکات تو اس میں زکاة ہے، الا ان یکون صنفا واحدا سوائے اس کے کہ وہ کوئی ایک صنف ہو مختلف انواعی جو مختلف انواع کی ہو، کتموری جیسا کہ کھجور ہیں، ففیہ الزکات تو اس میں زکات ہے۔ اخرج من کل نوع زکاتہ ہر قسم میں سے اس کی زکات نکالے گا، اخرجہ نکالے گا من کل نوع زکاتہ ہر قسم میں سے اس کی زکات۔ وإن اخرج جیدا عن الردیء اور اگر وہ اچھی نکالے گا ردی معمولی چیز کے بدلے میں، اگر وہ اچھی نکالے گا ناکارے کے بدلے میں، یعنی اونچے معیار کی کھجوریں نکالے گا معمولی معیار کے کھجوروں کے مقابلے میں، جائز ہوگا، وَلَهُ أَجْرُهُ اور اس کو اس کا ثواب ملے گا۔ وَإِنْ أَخْرَجَ جَيِّدًا اور وہ اچھے معیار کی کھجوریں نکالے گا، عن الردیء معمولی معیار کی کھجور کے مقابلے میں، جائز ہوگا، وَلَهُ أَجْرُهُ اور اسے اس کا اجر ملے گا۔ النوع الثانی المعدن دوسری قسم ہے معدن۔ کیا پہلے ہم لوگ اس کو سمجھ جائیں گے اوپر کی طرف، پڑھ لیں گے پورا۔ المعدن دھات، زمین سے نکلنے والی دھاتیں، المعدن کے معدن کا ترجمہ دھات کا کریں گے اور اس کی جمع کیا ہے؟ معادن، معادن۔ فمن استخرج من معدن نصابا جو کسی زمین سے جو کوئی دھات نکالے، نصابا من الذهب والفضة ایک ہی چیز ہے نا، عربی میں معدن بولیں گے، پیٹرول بھی تو معدنیات میں آ جائے، ہاں تو وہ دھات تو نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، معدنیات بولیں گے، ٹھیک ہے۔ دھات کی قسم کی جتنی بھی چیزیں ہیں، اور پھر معدنیات اگر سمجھتے ہیں تو صحیح، اچھا ہے وہی لفظ۔ فمن استخرج من معدن نصابا من الذهب او الفضة جو نکالے کوئی معدنیات میں سے کوئی چیز سونے اور چاندی کے نصاب کے مطابق، یعنی سونا نکالے چاندی نکالے جو نصاب کو پہنچتا ہو، سونے چاندی کا نصاب کتنا ہے، سونا چاندی کا نصاب یہ ہم لوگ پڑھے نہیں، آئے گا انشاءاللہ۔ او ما قیمت ذالک یا پھر اس کی قیمت کو پہنچتا ہو، اگر سونا چاندی نکالتے ہیں تو وہ جو نصاب کو پہنچ جاتا، یا پھر اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز نکالتے ہیں لیکن وہ سونا چاندی کے نصاب کو پہنچتا ہو، ٹھیک ہے، سمجھ رہے نا۔ من الجواہری جواہر میں سے، جوہر کس کو بولتے ہیں؟ جواہر یہ سونے چاندی کے جو ہوتے ہیں، دیکھیے ڈکشنری میں لکھا ہوا ہے جوہر قیمتی پتھر جس کے نگینے وغیرہ بنائے جاتے ہیں، قیمتی پتھروں کو جواہر کہتے ہیں، جوہر کی جمع ہے جواہر اور وہ قیمتی پتھروں کو کہتے ہیں، قیمتی پتھر یہ ہوتا ہے جس کے نگینے وغیرہ بنائے جاتے ہیں۔ اول کوہلی یا گندھک تارکول جو سیاہ کلر کا ہے، کوہل کہتے ہیں اس کو، اول کوہلی یا گندھک تارکول، ہاں، اول سفری یا پیتل، اول حدیدی یا لوہا، ہاں، اول حدیدی یا لوہا، او غیرہ یا اس کے علاوہ دوسری چیزیں جیسے کہ تانبا وغیرہ ہیں، فعلیہ الزکاۃ یا پھر کوئلہ بھی ہے تو پھر اس پر زکوٰۃ ہے۔ تو جو معدنیات میں سے سونا اور چاندی نکالے نصاب کو پہنچے اس میں زکوٰۃ ہے، یا پھر اس کے علاوہ سونے چاندی کے علاوہ دوسری چیز نکالے جو زکوٰۃ کے نصاب کو پہنچتی ہو، جو زکوٰۃ کے نصاب کی قیمت کو پہنچتی ہو، خواہ وہ جواہر ہوں یا گندھک ہو یا پھر پیتل ہو یا سونا ہو یا کوئی چیز ہو، تو اس میں کیا ہے؟ فعلیہ زکاۃ، تو اس میں زکوٰۃ ہے۔
ولا یخرجو الا بعد السبکی والتصفیتی، اور زکوٰۃ نہیں نکالے گا مگر اسے صاف کرنے کے بعد، اسے پھیلانے اور صاف کرنے کے بعد، یعنی جب زمین سے جب نکالیں گے تو اس چیز میں جو ہے مٹی لگی ہوگی یا پھر کوئی اور چیز لگی ہوگی، جب اس کو صاف کر دیں گے پھر اس میں سے زکوٰۃ نکالیں گے مگر اس کی صفائی کے بعد۔ یہ صفائی دو قسم کی ہے، صفائی کا مطلب مٹی اس کے سے ہٹا دیں یا اس کو میلٹ کرنے کے بعد؟ نہیں، جو چیز زمین کے اندر رکھنے سے اس کو لگی ہے وہی چیز، باقی اس کے بعد دوسری چیز کرتے ہیں ایک الگ چیز ہے۔ جو زمین سے نکالتے وقت زمین کی جو چیزیں اس کو لگتی ہیں صرف اتنی چیز نکالنے کی حد تک۔ ولا شیء فی اللؤلؤ والمرجان، اور موتی اور مرجان میں کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ مونگے کہتے ہیں مرجان کو، لیکن اس کو مرجان خود بھی استعمال کرتے ہیں اسی طرح۔ والعنبری، اور عنبر میں، عنبر کے بارے میں اختلاف ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ مچھلی کی ایک قسم ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ سمندری مچھلیوں سے جو خوشبو نکلتی ہے، بعض مچھلیاں ایسی ہیں جن کے فضلے سے خوشبو نکلتی ہے، تو اس سے مراد وہ خوشبو ہے، جب اس کو جو پیسا جاتا ہے تو اس میں خوشبو نکلتی ہے۔ اول، ہاں عطر ہوتے ہیں بالکل۔ اول سمکی، یا مچھلی میں کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ مچھلی، چار چیزیں آپ کو بتائیں، موتی، مرجان، عنبر اور سمک، مچھلی، ان میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ ولا شیء فی صید البر والبحر، اور کوئی زکوٰۃ نہیں ہے بری اور بحری شکار میں، بری اور بحری شکار میں۔ وفی الرکاز، اور زمین سے حاصل ہونے والے خزانوں میں، دفینوں میں، ہم دفینوں کا ترجمہ کریں گے زیادہ اچھا، وہ خزانے جو زمین میں دفن کیے جاتے ہیں، رکاز کہتے ہیں۔ اور زمین سے حاصل ہونے والے دفینوں میں الخمس، پانچواں حصہ ہے زکوٰۃ کا، سب سے زیادہ اسی میں ہے کیونکہ یہ بغیر محنت کے حاصل ہوتا ہے۔ الخمس پانچواں حصہ ہے۔ ای نوع کان من المال، کسی بھی قسم کا مال ہو، ای نوع کان من المال، کسی بھی قسم کا مال ہو، قل او کثر، تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، لأہل الفیء، اہل فی کے لیے دیں گے اس کا مال، جو فی کے لیے اہل فی، میں بتاؤں گا انشاءاللہ، فی الحال ہم لوگ صرف ترجمہ کر رہے ہیں۔ اہل فی کو اس کا وہ زکوٰۃ کا مال دیا جائے گا، وہ باقی ہی لواجدہ، اور باقی مال اس کے پانے والے کو دیا جائے گا، باقی مال اس کے پانے والے کو دیا جائے گا۔ باب زکوٰۃ الخارج من الارض، زمین سے نکلنے والی چیزوں کی زکوٰۃ، اس کے لیے سب سے پہلی بنیاد ہے سورہ بقرہ کی وہ آیت، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض، اے ایمان والو پاکیزہ چیزوں میں سے، انفقوا من طیبات ما کسبتم، جو کماتے ہو، جو تم کماتے ہو اس کے پاکیزہ چیزوں میں سے خرچ کرو، ومما اخرجنا لکم من الارض، یہ دلیل ہے، ومما اخرجنا لکم من الارض، اور اس میں سے جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ زمین سے نکلی ہوئی چیزوں میں زکوٰۃ واجب ہے، یہ دلیل ہے۔ اور دوسرا سورۃ الانعام کی آیت ہے، کلوا من ثمرہ اذا اثمر وآتوا حقہ یوم حصادہ، کہ اس کے پھل کو کھاؤ جب وہ پک جائے، پختہ ہو جائے، اور اس کا حق نکالو اس کے کٹنے کے دن، فصل کے کاٹنے کے وقت پر۔ تو یہ بنیاد ہے قرآن کی آیتوں میں سے، اور احادیث میں بہت سی احادیث بنیاد ہیں، جس میں سے کچھ حدیثیں یہاں موجود ہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ زمین سے نکلنے والی چیزوں میں سے زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ زمین سے نکلنے والی چیزوں کی دو قسمیں یہاں بیان کی گئی، اور حقیقت میں وہ تین قسمیں ہیں، ایک ہو گئے اناج اور پھل، اور دوسری قسم ہو گئی معدنیات، اور تیسری دفینے ہیں، لیکن ان کو معدنیات میں انہوں نے شامل کر لیا، ورنہ اس کو الگ کریں گے ہم لوگ کیونکہ معدنیات میں نہیں آئے گی دفینے، اگر اس کو الگ کرتے گے تو کتنی قسمیں ہو جائیں گی؟ تین قسمیں ہو جائیں گی، تین الگ کریں گے تو تین ہوں گی، نہیں تو دو، ورنہ دو ہوں گی، اگر معدنیات میں دفینوں کو شامل کریں گے تو دو ہوں گی، ورنہ وہ تین ہوں گی۔ تو پہلی چیز انہوں نے کہی النبات، نباتو یعنی نباتات، زرعی پیداوار، فتجب الزکوٰۃ منہ، تو اس میں زکوٰۃ واجب ہے۔ اس کی کس چیز میں زکوٰۃ واجب ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہر وہ چیز جو اناج ہو اور پھل ہو۔ قرآن مجید کی آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ زمین سے نکلنے والی ہر چیز میں زکوٰۃ ہے، کیونکہ آیت کے الفاظ انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض، جو کچھ بھی ہم نے زمین سے تمہارے لیے نکالا ہے، الفاظ میں کیا پائی جاتی ہے؟ عمومیت پائی جاتی ہے۔ ان الفاظ کی بنیاد پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ زمین سے نکلنے والی ہر چیز پر زکوٰۃ ہے، ہر وہ چیز جس کو انسان اپنے زمین میں بوتا ہے اس کی وہ زکوٰۃ نکالے گا، زمین میں ہر وہ چیز جس کو وہ بوتا ہے۔
चाहे उसे महफूज रखा जा सकता हो, जैसे कि अंगूर है उसे जो सुखा कर महफूज रखा जाता है किशमिश के तौर पर, या फिर महफूज नहीं रखा जा सकता हो जैसे सेब है और अंजीर है, कोई भी चीज़ हो, या फिर जो मुख्तलिफ़ किस्म की जो है सब्जियां हैं, उन सब में ज़कात है, बशर्ते कि वो निसाब को पहुँचे। निसाब की शर्त है, लेकिन किन में ज़कात है उसके बारे में हम बात करेंगे तो कुरान की आयत की रोशनी में उनका ख्याल ये कि हर चीज़ में निकालेंगे। अलबत्ता एक हदीस है, उस हदीस में जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात का जिक्र किया कि ज़कात ना निकाली जाए सिवाय हिंता, तमर, शाइर और ज़बीब के। ज़कात मत लो मगर इन 4 चीज़ों के। हिंता कहते हैं किसको? गंदुम को, गेहूँ को। हिंता गंदुम को कहते हैं। और दूसरी चीज़ क्या हो गई? तमर। क्या है वो? खजूर। और तीसरी चीज़ है शाइर, जौ। और चौथी चीज़ है ज़बीब। तो इस हदीस की रोशनी में इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह का मसलक ये है कि ज़कात जो है ज़री पैदावार में से सिर्फ इन 4 चीज़ों में लेंगे, किसी और चीज़ में नहीं लेंगे। चौथी क्या बताई आपने? किशमिश, ज़बीब, किशमिश, मुनक्का जिसको कहते हैं हम लोग। कहाँ से आप पढ़े? मैं समझा रहा हूँ, कहीं से पढ़ने रहा हूँ। ठीक है, तो पहला मसलक मैंने बयान किया किसका? इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का, जो कहते हैं कि ज़मीन से निकलने वाली हर पैदावार में ज़कात दी जाएगी। दूसरा मसलक मैंने अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह का बयान किया एक हदीस की रोशनी में कि सिर्फ 4 चीज़ों से ज़कात दी जाएगी और उन 4 चीज़ों में ही ज़कात होगी। ये दूसरा मसलक है। तीसरा मसलक ये है कि इमाम शाफ़ी और इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का मसलक है कि उन्होंने कहा कि ये जो 4 चीज़ें हैं हस्र के लिए नहीं हैं कि इन्हीं में ज़कात की जाए, बाकी दूसरी चीज़ में ज़कात नहीं ली जाए, बल्कि उन तमाम चीज़ों में जो उस किस्म की हैं, 4 किस्म की चीज़ों से हैं, ज़री पैदावार में से वो 4 किस्म की चीज़ों की नौयत की चीज़ें हैं, उसमें ज़कात ली जाएगी। तो वो किस तरह की नौयत की होंगी? वो नौयत क्या होगी जिसमें ज़कात लिया जाएगा? तो इमाम अहमद इब्न हंबल, इमाम मालिकी, इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह का मसलक ये है कि वो जो खूद बन सकते हों, यानी ग़िज़ा बन सकते हों, जो ग़िज़ाई अशिया हों, ग़िज़ाई अजनास में से हों, और फिर दूसरा उनको महफूज रखा जा सकता हो। ये तीसरा मसलक मैं बयान कर रहा हूँ। और ये मसलक उन्होंने कहाँ से लिया? उन 4 चीज़ों पर गौर किया। उन 4 चीज़ों में क्या इल्लत पाई जाती है? उन 4 चीज़ों में इल्लत ये कि चारों ग़िज़ाई चीज़ें हैं, खजूर है, गंदुम है, और फिर जौ है, और फिर मुनक्का है। ये 4 चीज़ें ग़िज़ाई हैं। तो उन्होंने कहा कि हर वो ज़मीन से निकलने वाली पैदावार जो ग़िज़ाई अजनास की नौयत, जो ग़िज़ाई अजनास में से हों, और फिर उनको महफूज भी किया जा सकता हो, क्योंकि वो 4 चीज़ों को महफूज किया जा सकता है, तो उसमें ज़कात होगी। यहाँ जो मसलक बयान किया जा रहा है साहिब किताब मौलवी रहमतुल्लाह अलैह, वो अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह का दूसरा मसलक है, और यही मारूफ है, मज़हब यही है। इमाम अहमद इब्न हंबल का मज़हब यही है, अरे हंबली, वो ये कि हर वो पैदावार में ज़कात होगी जिनको नापा जा सकता हो। क्योंकि पहले नापते थे, एक सा है, एक कोई नाप होता था, उसको सा बोलते थे, या फिर उसको जो है जो भी बोलते थे, उसमें नाप कर उसके हिसाब से जो है, जैसे आजकल तोलते हैं 1 किलो 2 किलो, उस वक्त पैमाने थे, वो पैमाने में नापा जाता था। तो उन्होंने जो इल्लत निकाली 4 चीज़ों की, वो ये कि हर वो चीज़ जिसको नापा जा सकता हो या तोला जा सकता हो आज के हिसाब से, या और फिर उसको ज़ख़ीरा किया जा सकता हो, महफूज किया जा सकता है, तो उसमें ज़कात दी जाएगी। और वही हम लोग पढ़ रहे हैं। तो मैंने 4 मसलक जिक्र किए। पहला मसलक उमूमी है, दूसरे मसलक में सिर्फ 4 महदूद है, तीसरे मसलक में 4 में क्या इल्लत पाई जाती है उसकी बुनियाद पर है। तो इमाम मालिक और इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि वो 4 पर हम क़ियास करेंगे हर उस चीज़ को जिसको जो ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल की जाती हो और जिसे महफूज किया जा सकता हो। लेकिन अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह कहते हैं कि हर उस चीज़ को जिसे नापा जा सकता हो, क्योंकि वसक़ कहा गया ना हदीस पे, लैसा फ़ीमा दीना खमसती औसुखिन, 5 वसक़ से कम में ज़कात नहीं, तो इसका मतलब उसको नापा जाता है। तो उन्होंने जो इल्लत निकाली वो ये कि हर वो चीज़ जिसको नापा जा सकता हो और जो ज़ख़ीरा की जा सकती हो। ठीक है, उसी को हम पढ़ रहे हैं। पहला कॉल आपने बताया वो किसका है? इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का। तो यहाँ ये बता रहे हैं कि ज़कात के ज़रई पैदावार में ज़कात के वाजिब होने की पहली शर्त ये है कि वो जो है अनाज हो या फिर जो है दाने हो या फिर क्या हो, फल हो। ये पहली शर्त हो गई। दूसरी शर्त क्या है? वो नापा जा सकता हो उसको, ये दूसरी शर्त हो गई। तीसरी शर्त ये है कि उससे ज़ख़ीरा किया जा सकता हो, महफूज। और ज़ख़ीरा करने के लिए आज के जो ज़राए हैं वो नहीं, बल्कि आम तौर पर जिसको रखने से वो, जैसे टमाटर है या फिर जो है सेब है, आज हो सकता कुछ ऐसी चीज़ ईजाद हो गई हो जिसके लिए उसे एक ज़माने तक रखा जा सकता हो, लेकिन वो मुराद नहीं है।
बल्कि आम तरीके से जिसको महफूज रखा जा सकता है, जैसे कि अंगूर है, उसे हम लोग किशमिश बना सकते हैं बगैर किसी दूसरी चीज़ों के इस्तेमाल के। तो ज़ख़ीरे से मुराद जो है बगैर दूसरी चीज़ों के इस्तेमाल किए बगैर उन्हें ज़ख़ीरा किया जा सकता हो। वाज़ेह है? ये तीसरी शर्त हो गई। चौथी शर्त क्या है? जब उसकी ज़मीन से निकले, मतलब ये कि वो उस ज़री पैदावार का मालिक हो, उसकी मिल्कियत को वाज़ेह करने के लिए वो उस ज़री पैदावार का मालिक हो। ये चौथी शर्त हो गई ज़री पैदावार की ज़कात की। पाँचवीं शर्त यह है कि वो बलगा खमसता औसुखिन, और 5 वसख हो जाए उसकी मिक़दार, निसाब को पहुँचे। तो ठीक है, ज़री पैदावार में ज़कात के वाजिब होने की 5 शर्तें हैं। पहली शर्त क्या है कि वो अनाज और अनाज या फल हो, अनाज और फल हो, ये पहली शर्त हो गई। दूसरी शर्त क्या हो गई? जिसे नापा जा सकता है और महफूज किया जा सकता है। तीसरी शर्त हो गई महफूज किया जा सकता है। थोड़ा आहिस्ता चलिए। उसके बाद चौथी शर्त हो गई महफूज किया जा सकता है। मिल्कियत हो, उसकी मिल्कियत में हो। पांचवी शर्त है 5 वसक को पहुंचे। 5 वसक को पहुंचे। ज़कात ज़री पैदावार में ज़कात, तर्जुमा बोल रहे हैं आप? ज़री पैदावार में ज़कात के वाजिब होने की 5 शर्तें हैं। पहली शर्त यह है कि वो अनाज और फल हो, और दूसरी शर्त यह है कि उसे नापा जा सकता हो। नापा ब्रैकेट में तोला भी लिख दीजिए, नापा या तोला जा सकता हो, नापा या तोला जा सकता हो। और तीसरी शर्त यह है कि उसे ज़ख़ीरा किया जा सकता हो, महफूज किया जा सकता हो। चौथी शर्त यह है कि वो उस ज़री पैदावार का मालिक हो। और पाँचवीं शर्त यह है कि वो निसाब को पहुँचे, और उसका निसाब है 5 वसख। निसाब को एक साल में पहुंचे या कब पहुंचे? जब भी पहुंचे, क्योंकि ज़री पैदावार की साल, इस एक बात पर आप गौर कीजिए कि इसमें साल गुजरना शर्त नहीं है। साल गुजरना शर्त नहीं, इसलिए कहीं भी उसका जिक्र नहीं आया। 5 शर्तों में साल गुजरने का शर्त नहीं है। अगर एक बार फसल पैदा होगी निसाब को पहुंचेगी तो साल में एक ही बार होगी। 2 साल में अगर फसल पैदा होगी निसाब को पहुंचेगी तो 2 साल में एक होगी। साल में अगर 3 बार पैदावार हो रही है और निसाब को पहुंच रही है तो 3 बार ज़कात निकालेंगे। उसका ताल्लुक जो है निसाब को पहुंचने और इन शुरू से है, 5 शुरू से है, साल से उसका शर्त नहीं है। वसख की जो है दलील क्या है? 5 वसख जी, वो नहीं, इस मकाम पर उस बात को छोड़ दीजिए, आगे जब बात आएगी ना उसको समझेंगे हम लोग। इस मकाम पर जो बात है उसी मकाम को समझिए। 5 शर्तें आपके पास हो गई, उसके बाद मजीद तफसीलात उस वक्त पर आएंगे तो उस वक्त को समझना उसको आसान हो जाएगा। तो निसाब की दलील क्या है? लैसा फी हब्बिन वला समरिन सदक़तुन, किसी अनाज में और फल में कोई ज़कात नहीं है, हत्ता यबलुगा खमसता औसुखिन, यहाँ तक कि वो 5 वसक़ को पहुँच जाए। वल वस्फ़ु 60 साअन, इसको छोड़ दीजिए आप बिल्कुल ही, क्योंकि ये रतल और फिर उकिया वगैरह ये वो ऐसे नाप हैं जो इस वक्त उसके इस्तेमाल नहीं होते, तो इसलिए उनको समझना बहुत मुश्किल है, और फिर जो है वो उसका फ़ायदा भी नहीं होगा। तो वसक़ जो है 60 सा है, ये उन्होंने लिख दिया है, ठीक है। तो एक वसक़ के 60 सा हो गए, 5 वसक़ के कितने हो गए? 300 सा। 300 सा यानी अनाज किसी के खेत में इतनी ही पैदा हो कि वो 300 सा हो जाए, ठीक है। अब सा को समझेंगे। एक सा जो है 4 मुद होता है। एक सा में कितने होते हैं? 4 मुद होते हैं। मुद किसे कहते हैं? एक दरमियानी किस्म के आदमी के जो हाथ हैं वो अपने दोनों हाथों को लीप बोलते हैं उसको, दोनों हाथों को लीप भर अगर 4 मरतबा डालें, 1 मरतबा, 2 मरतबा, 3 मरतबा, 4 मरतबा, तो ये एक मुद हो गया। एक मुद में 4 लीप आते हैं। पाव बोलते हैं? नहीं, वो पाव नहीं है। पाव जो है मुख्तलिफ हो जाएगा। पाव में हो सकता एक भी आए। दरमियानी आदमी के हाथों से, दरमियानी आदमी के हाथों में अनाज भरकर अगर 4 मरतबा डालेंगे तो वो एक मुद होगा, एक मुद होगा। क्योंकि ये जो है आप अगर जो है वो निकालना चाहते हैं, ज़कातुल फ़ित्र सदक़े फ़ित्र निकालना चाहते हैं, सदक़े फ़ित्र एक सा है, अगर आपको जो वज़न में मुश्किल हो रही है तो आप ये कर सकते हैं, मतलब है कि 4 मरतबा आप अगर अनाज को जो है लेकर 1 मरतबा, 2 मरतबा, 3 मरतबा, 4 मरतबा डाल देंगे ऐसे भर कर अपने हाथ से, तो वो एक सा हो जाएगा। ये आसान तरीका है, ठीक है। अब हम इसको वज़न में देखेंगे। मुद का फिर से समझाओ, ठीक है। एक सा में 4 मुद होते हैं, ठीक है, और एक मुद में 4 हाथों का लीप भरकर होता है। और हाथों का लीप भरकर क्या है? दरमियानी आदमी के, यानी जो बहुत बड़ा हाथ ना हो, जो छोटा ना, दरमियानी आदमी के हाथों से 4 मरतबा अनाज भरकर अगर डालेंगे किसी चीज़ में, तो ये 4 मरतबा जो डालेंगे ये जो है एक मुद हो जाएगा, एक मुद होगा।
तो इसको और आसान समझिए, ये तो खैर आसान, ये चीज़ आसान है, हर आदमी आसानी से समझ सकता, लेकिन मजीद हम उसके लिए 544 ग्राम, कितना? 544 ग्राम, एक मुद्द होता है 544 ग्राम। तो आप बताइए एक सा कितना हो गया? 544 एक सा कितना हुआ? एक मुद्द 544 ग्राम, 554 ग्राम एक मुद्द। एक सा कितना हो गया? 2 किलो नहीं, 400 नहीं होते, 2 किलो 100 चिल्लर होंगे। 2 किलो से थोड़ा लो 160, 2 किलो से 100। 160। देखिए इसको अच्छी तरह समझ जाइए। देखिए अब हम लोग इसको पढ़ चुके हैं कि एक वसख में कितने सा होते हैं? 60 सा, और एक सा होता है 4 मुद्द। एक मुद्द होता है 544 ग्राम। 544 ग्राम को आप जो है एक सा बनाइए, 2 किलो से कुछ ज्यादा हो गया, ठीक है। एक सा। अब ये देखिए कि 300 सा कितना होता है? 652 हो जाएगा, 652 किलोग्राम। 300 सा कितना होता है देखिए, यानी अब आपके पास जो जवाब आया, यानी 544 को जब आप 4 से किए तो आपके पास जवाब आया 2 किलो 106। 2 किलो। उसको फिर आप कीजिए 300 से, क्योंकि वो एक सा हो गया। अब हमको देखना है 300 सा के कितने होते हैं? 652 किलोग्राम होते हैं। उसी को देखिए ना आपके पास। उस्ताद आप कह रहे हैं 300 को 2 किलो में वो करना है, हमें कन्वर्ट करना है ना? नहीं, देखिए ठीक है, स्टेप बाय स्टेप जाइए, स्टेप बाय स्टेप जाइए। मैंने कहा एक मुद्द में 544 ग्राम, ठीक है। एक सा में कितने मुद्द होते हैं? 4। तो आपको एक सा जानने के लिए क्या करना पड़ेगा? 544 into 4 करेंगे ना? कीजिए, कितना जवाब आया? 2176। 2100। ये किसके हो गए? ये जो है 4 मुद्दे। एक सा के, एक सा के हो गए ना, ये एक सा के हो गए ना। और ये जरी पैदावार का निसाब कितने सा है? 300 सा है। 60 तो एक वसख के हो गए, 5 वसख चाहिए ना। जरी पैदावार का निसाब कितने सा है? 5 वसख, यानी कितने सा? 300 सा है ना, समझ रही हैं आप? 300 सा। एक सा में कितना होता है वो आपको पास आ गया। अब आपको 300 से ضرب दीजिए आप, तो आपको 300 सा का जवाब आ जाएगा। समझ गए आप? 652 किलोग्राम से कुछ ज्यादा आएगा। वाज़ेह है ना? तो जरी पैदावार का निसाब हुआ 652 किलोग्राम। अगर किसी के खेत में 652 किलोग्राम पैदा होता है या उससे ज्यादा होती है तो उसमें ज़कात है, उससे कम होती है तो उसमें ज़कात नहीं है। वाज़ेह हो गया आप लोगों पर? सारा सवाल इम्तिहान में मत पूछिए। इतना आसान नहीं है, आप लोगों के लिए तो बहुत आसान होना चाहिए। बोर्ड पर लिखने के लिए कोई चीज मेरे पास नहीं है। 650 क्विंटल बोले तो हाँ, 650 कुंटल। 650 क्विंटल में जी हाँ। बस ये हमने लिखी है 692 ग्राम है तो उसमें ज़कात है। हाँ। अगर उतना नहीं है तो ज़कात नहीं है। देखिए 652। 652। देखिए चलिए ठीक है, अब आप सबक तवज्जो दीजिए। मैं एक बार फिर आपको समझाते हुए आगे बढ़ता हूँ कि इसका निसाब जो है 5 वसख है। 5 वसख है, एक वसख में 60 सा होते हैं, तो 5 वसख के हो गए 300 सा। 5 वसख के हो गए 300 सा। और एक सा जो है 4 मुद्द है, और 4 मुद्द में 544 ग्राम होते हैं। 4 मुद्दे 544 ग्राम होते हैं। तो एक सा के तकरीबन 200 से 2000 से ज़्यादा होते हैं। अगर हम उसको जो है 300 सा से लेते हैं, तकरीबन 652 किलोग्राम होते हैं। तो 652 किलोग्राम से 652 किलोग्राम अगर किसी के पास खेत में उतनी जरी पैदावार होती है या उससे ज़्यादा होती है तो उस पर ज़कात है, उससे कम होगी तो ज़कात नहीं है। अब आगे बढ़ेंगे। शेख को जो चौथी शर्त थी कि अपनी जमीन से निकले पैदावार, अपनी ज़मीन से निकले वो पैदा, उससे मुराद जो है वो उसका मालिक हो। नहीं, मेरा मतलब है कि अगर ये जिस तरह हम जमीन हमारी है लेकिन हम किसी काश्तकार को ठेके पे दे देते हैं तो उस पे ज़कात वही निकालेगा जो मालिक है खेत का, यानी जो पैदावार का मालिक है, जो पैदावार का मालिक है। हम किसी को लैंड कर देते हैं कि अब इस पे तुम उगाओ, तुम ही को इसको, मतलब हमें सिर्फ साल का इतने पैसे तुम्हें देने हैं और बाकी पूरी जो पैदावार निकले उसको तुम बेचो, खाओ, जो करो तुम्हारी मर्जी है। तो इस सूरत में तो फसल का मालिक तो वो हुआ ना, तो वही मुराद है। तो मतलब वो निकालेगा। हाँ, वही निकालेगा जो फसल का मालिक है, जो फसल का मालिक है। क्योंकि वो जो खेत का मालिक है वो तो किराया ले रहा है, तो अपने किराए के पैसों में से अगर वो निसाब को पहुंचेंगे तो ज़कात निकालेगा वो, लेकिन ये पैदावार में से निकालेगा। फिर उसमें ज़कात देगा।
जी यानी पहले वो किराए के पैसे निकालेगा उसी फसल में से? नहीं, वो तो खेत का किराया, उसका पैदावार से ताल्लुक नहीं। अगर जो किराया दे रहा है, हाँ वो तो अपने किराया दे देगा, उसके बदले में जो पैसे हैं किराया निकाल के, यानी वो खर्च ही हो गया ना उसका, उसके बाद जो पैसे उसके पास बचेंगे उसमें ज़कात निकालेगा। वो उस पर है, वो किराए का क्या एतबार है फसल का, क्योंकि किराया तो सालाना होगा, मंथली होगा, लेकिन ये जो पैदावार है वो तो फसल जब उगेगी तब पैदावार होगी, उसका किराए से ताल्लुक नहीं है। तौर पर जो खेत का होता है वो सालाना होता है, किराया ताल्लुक नहीं है, इल्ला एक खेत का किराया अगर फसल की सूरत में होता है। ऐसा नहीं, बात ये है कि एक फसल साल में एक ही बार होती है, सही है, और साल के बाद उसने किराया भी देना है। तो अभी पूरा अनाज आ गया, पहले वो उसमें उसी से किराया निकाल के देगा, फिर ज़कात देगा। अगर जैसे बचत पे होता है ना, बाकी हमारे जो इनकम होती है साल में जितनी बचत होती है उसपे होता है, खर्चे वगैरह निकालते हैं, जितनी बचत है अगर वो हिसाब को पहुंचती है उसपे होती है, इस हिसाब से शायद नहीं, देखिए अगर वो किराए में अगर वो कीमत तय हुई है, कुछ पैसे तय हुए हैं, तो उसका कोई एतबार इससे नहीं है, कोई एतबार उससे नहीं है, वो किराया अपनी जगह पर है और फिर ये पैदावार उसकी अपनी जगह पर है। लेकिन अगर किराए में जो है अनाज तय हुआ है, किराए में अनाज तय हुआ है, तो वो दोनों चीज़ें जगह निसाब को पहुंचेगा तो ज़कात निकालेगा, उसके साथ ये भी देगा, यानी उस पर किराए से इस पर फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि खर्च की तरह नहीं है बल्कि वो किराया है। ठीक है, एक शख्स है उसके पास निकला ही इतना माल, उसका फल निकला ही इतना, कि अगर वो उसको किराया देता है तो फिर वो निसाब को नहीं पहुंचता फल, तो वो नहीं देगा, फिर नहीं देगा, फिर कैसे, मतलब वो तो निसाब के मुताबिक जो है ज़कात निकालेगा, उसका किराया भी बनता है उसमें से किराया देगा, दोनों चीज़ें देगा वो। यानी किराया ऐसी चीज़ नहीं है जो खर्च मानी जाएगी कि इंसान अपनी ज़कात से पहले अगर खर्च के पैसे निकाल देता है, अगर वो निसाब को नहीं पहुंचता है तो ज़कात, ऐसी बात नहीं है, बल्कि वो किराया जो है उसकी वो चीज़ है जो ज़कात की मिक़दार को निकालने के बाद जो है उसका किराया देगा अलग से। इसका मतलब ये काम इल्लत निकालेगा, हम नहीं ज़कात दे, तो इसका मतलब यही हुआ ना। नहीं, अगर किसी के पास जो है खेत में तकरीबन जो है समझिए 800 किलोग्राम अनाज होता है, 800 किलोग्राम, तो 800 किलोग्राम निसाब को पहुंचा हुआ है और उसको उसका किराया भी देना है, तो उसका मतलब ये नहीं कि पहले वो किराए का निकालेगा उसके बाद, ये नहीं है, बल्कि वो निसाब के हिसाब से ज़कात निकालेगा, ज़कात का माल ज़कात में निकालेगा, किराए का माल किराए में निकालेगा। किराया तो उसके अखराजात में से है, देखिए किराया तो उसके अखराजात में से है, ये फसल तो उसकी पैदावार है ना, अखराजात। अब उसमें ये भी नहीं कहा जा सकता कि उन्हें फसल पैदा करने के लिए उसने खेत में फला चीज़ें निकालेगी तो क्या सारे खर्च के जो है वो निकाल कर उसमें से ज़कात देगा, ऐसी बात नहीं है। वो निसाब में से ज़कात को निकालेगा, उसके बाद साथ में किराया देगा। ये ज़कात देने के टाइम ये सारी बातें निकलती हैं, वरना जी हाँ, बाकी दुनिया के सारे काम। ठीक है, यहाँ तक तो हमने ये चीज़ें कर ली कि ज़कात ज़री पैदावार में ज़कात के क्या शुरूत है। अब सवाल ये है कि कितनी मिक़दार में ज़कात निकालेंगे, तो उन्होंने जवाब दिया वो यजिबुल उश्रु फ़ी मा सुक़िया मिनस समाई, और 10वां हिस्सा निकालेंगे ज़कात के तौर पर उन खेतों में जिन्हें बारिश के पैना से सैराब किया जाता है, या ज़मीन पर बहने वाले पानी से, यानी नहरों के पानी से, या फिर जो है आसमान का पानी जो ज़मीन पर गिर चुका है उसके पानी से, या फिर ज़मीन खुद ज़रख़ैज़ है, उसको पानी की ज़रूरत नहीं है, ज़मीन में खुद नमी है, उसी से जो है खेत में अनाज हो जाता है। तो ऐसी सूरत में आदमी ने कुछ मेहनत नहीं की, कुछ खर्च नहीं किया, कुछ ने उसमें कोई खर्च नहीं किया, तो इसलिए उसमें 10वां हिस्सा निकालेगा। और फिर ऐसी ज़मीन है जिसमें इंसान बाकायदा जानवरों के ज़रिए या फिर मशीनों के ज़रिए पानी को पहुंचाता है अपने खेतों तक, तो उसने खर्च किया है पानी पहुंचाने के लिए, तो इसलिए उसमें 20वां हिस्सा होगा। यानी बिल्कुल अल्लाह ज़कात का जो निसाब है ऐसा मुक़र्रर किया गया है जो बिल्कुल इंसान के उसके आसानी के अलावा उसके सलाहियत के मुताबिक है, उसके अंदर वो सलाहियत है कि उतने मिक़दार वो निकाल सकती है, ना उस पर जुल्म है और नहीं गरीबों के साथ जुल्म है, ना साहिब माल पर कोई जुल्म है और नहीं गरीबों पर कोई जुल्म है, हर एक को गया उसका हक दिया गया है। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। गवर्नमेंट के दिए हुए ट्यूबवेल से वो पानी फ्री उसे मिल रहा है, फिर तो इसी कैटेगरी, इसी में आएगा। जी हाँ, लेकिन अगर पैसे लगा के डाल रहा है तो फिर दूसरी में आ जाएगा, फिर वो दूसरी में आ जाएगा। फ़ीमा सक़तिल अनहार वल गैम वल उशूर व फ़ीमा सुक़िया बिस्सानियति निस्फ़ुल उशूर। सही मुस्लिम की हदीस है कि वो खेत जिनको नहरों से और बारिश के पैने से सैराब किया जाए उसमें 10वां हिस्सा है, और जिनको मशीन वाला से सैराब किया जाए उसमें क्या है, 20वां हिस्सा है। उसके बाद कहते हैं वो इज़ा बदस सलाहु। अब यहाँ वो बात आएगी कि खेती में ज़कात किस वक्त निकालेंगे।
اور نصاب کو ہم جو دیکھنا کب ہے، جب پھلوں میں پختگی آ جائے. پھلوں میں پختگی کی علامت یہ ہے کہ اس میں زرد یا پھر سرخی پن آ جائے. اس کا وہ پھل جو ہے یا تو زرد ہو جائیں گے پیلے یا پھر لال ہو جائیں گے، تب جو ہے ان کی زکوٰۃ کا وقت ہوگا وہ. یا پھر جو ہے اناج میں کیا، اناج میں کب جو ہے زکوٰۃ نکالیں گے، جبکہ اناج کے دانے سخت ہو جائیں گے، ان کو جو ہے جب دبایا جائے گا تو وہ ٹوٹیں گے اور پھٹیں گے نہیں، تو اس وقت جو ہے ان کی زکوٰۃ کو نکالیں گے. ایسا نہیں کہ جو ہے کبھی بھی نکالیں گے، یا ایسا نہیں کہ پہلے ہی نکال دیں گے شروع میں، یا پھر جو ایک دم آخری، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اس کا وقت مقرر کیا گیا. وہ وقت کیا ہے، زکوٰۃ کے نکالنے کا وقت کیا ہے، جب پھلوں میں پختگی آ جائے، یعنی ان میں سرخی یا پھر پیلاپن آ جائے، یا پھر اناج میں سختی آ جائے. ٹھیک ہے، واضح ہے؟ ٹھیک ہے، اس وقت زکوٰۃ واجب ہوگی. اس کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ ولا یخرج الحب الا مصفا، اور اناج کو نہیں نکالیں گے مگر صاف ہونے کے بعد. ایسا نہیں کہ کھیتی گیہوں اپنی بالی ہی میں ہے، ابھی ان کو نکال کر الگ نہیں کی اپنی بالیوں سے، اس وقت زکوٰۃ نکالنے کی نہیں ہے، بلکہ بالیوں سے جب ان کو الگ کر دیں گے اس کے بعد ان کی زکوٰۃ نکالیں گے، صاف حالت میں اس کو نکالیں گے. اور پھر یہ پھلوں کی جو زکوٰۃ ہے ان کے سوکھنے کے بعد نکالیں گے، لیکن ان کے سوکھنے کے بعد کتنے ہو جائیں گے اس کا اندازہ ان کے درختوں پر لگا سکتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن رواحہ کو بھیجا تھا یہودیوں کے کھیتوں کے اس کے سلسلے میں، ان سے جو خراج لیتے ہیں اس سلسلے میں، کہ وہ اندازہ لگائیں کہ سوکھنے کے بعد وہ کتنے ہوتے ہیں. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ میں بھی یہ حکم دیا تھا کہ وہ اندازہ لگائیں کہ کھیتوں میں جو انگور ہیں جب وہ سوکھ جائیں گے تو کتنے ہوتے ہیں. یہ چیز جائز ہے، ان کو لیں گے ان کے سوکھنے کے اعتبار سے، ان کے سوکھنے کے اعتبار سے ہی لیں گے، کیونکہ جب وہ ان کے اندر وہ صلاحیت ہے کہ ان کو باقی رکھا جا سکتا ہے، اس لیے اس کی وجہ سے زکوٰۃ لے رہے ہیں. لیکن اس وقت تک انتظار کی ضرورت نہیں ہے، اس وقت تک انتظار کی ضرورت، جبکہ فصل جب کاٹیں گے یا پھر کاٹنے والے ہوں ان کے اندر وہ چیز آ جائے، پختگی آ جائے، تو اس وقت جو اندازہ لگایا جا سکتا ہے ماہرین سے، جو اس سلسلے میں علم رکھتے ہیں ان کے ماہرین سے، کہ یہ سوکھ جائیں گے جب کشمش یا منقع بن جائیں گے تو ان کی کیا مقدار ہوگی، تو اسی مقدار کے حساب سے زکوٰۃ لیں گے. ٹھیک ہے، تو یہی کہتے ہیں کہ ولا ثمر الا یابسا، کہ پھلوں میں زکوٰۃ نہیں لیں گے مگر سوکھی حالت میں، لیکن اس کا جب وہ تازہ ہوں گے تو ان کی سوکھی حالت کتنی ہوتی ہے اس کا اندازہ لگانا جائز ہے. اس کا مطلب وہ پھل جو ہم اسی حالت میں کھاتے ہیں ان میں زکوٰۃ نہیں ہے. وہ جو جن کو ذخیرہ جو محفوظ نہیں رہ سکتے، جیسے سیب ہیں یا پھر آرنج ہیں، جتنی بھی چیزیں اس میں زکوٰۃ نہیں ہے. جو محفوظ باقی نہیں رہتے زیادہ، کیونکہ اس میں اس کو جو ہے صاحب مال کو فائدہ نہیں ہے، اگر وہ زکوٰۃ نکالے گا تو پھر اس کا نقصان ہوگا. لیکن شیخ اب تو ایسے پروسیسنگ آ گئی کہ فریز کر لیتے ہیں تو وہ نہیں ہوگا شامل. تو شروع ہی میں بتایا تھا کہ اس کا اعتبار نہیں ہے، اس کا اعتبار نہیں ہے، بلکہ فطری طریقے سے جس کو محفوظ کیا جا سکتا ہو وہی مراد ہے. اس کے بعد کہتے ہیں ولا زکوٰۃ فیما یکتسبہ من مباح الحب والثمر، اور زکوٰۃ نہیں ہے جس کو وہ کماتا ہے مباح طریقے سے اناج میں سے اور پھلوں میں سے، اناج اور پھلوں میں سے جس کو مباح طریقے سے وہ کماتا ہے. مثال کے طور پر آدمی نے اپنے کھیت میں سے اناج نکالا اور کچھ غریبوں کو دے دیا، غریبوں کو کوئی چیز دے دی، تو کہتے ہیں کہ اس کے اوپر وہ جو ان کے پاس اناج آیا ہوا ہے اس میں سے وہ زکوٰۃ نہیں نکالیں گے. کیوں؟ کیونکہ اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ وہ جب وہ نصاب کو، جب اس کے وجوب کا جو وقت ہوا تھا اس وقت تو یہ اس کے مالک نہیں تھے. یہ جو مالک ہوئے ہیں اب اناج کے، اس کے وجوب کے وقت کے بعد مالک ہوئے ہیں. اس کے وجوب کا وقت، مثال کے طور پر اس کی ایک شکل یہ ہو سکتی ہے، اور یہ سمجھنا آسان ہو جائے گا کہ ایک آدمی نے اپنے کھیتی میں اناج بوئے جو کچھ بھی کھیتی کی، اس کے بعد جب وہ اس میں پختگی آ گئی اور اناج میں سختی آ گئی تو اس نے کسی کو بیچ دیا. اب اس کی زکوٰۃ کون نکالے گا؟ اس نے لیا، کیونکہ جس نے خریدا ہے وہ تو وجوب کے وقت کے بعد خریدا، وہ زکوٰۃ نہیں دے گا. لیکن اس میں وجوب کا جو وقت آیا تب کون مالک تھا اس کا؟ جس نے اگایا تھا، تو وہ دے گا. تو وہی بتاتے ہیں کہ وہ جو مباح طریقے سے کسی کے پاس آ گیا ہو، یعنی جس نے اس وقت خریدا ہو جبکہ اس میں پختگی آ چکی تھی، اس کے بعد اس نے خریدا ہو، تو اس کی زکوٰۃ وہ نہیں نکالے گا. تو خریدنے والے پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی، بیچنے والے پر ہوگی. لیکن اگر اس نے اس میں پختگی آنے سے پہلے خریدا تھا اور بعد میں پختگی آئی تو وجوب کے وقت وہ مالک ہے اس کا، وہ نکالے گا. اسی طرح کسی آدمی کو اگر کوئی شخص جو ہے کھیتی میں کچھ اناج چھوڑ دے غریبوں کے لیے، کسی بھی وجہ سے چھوڑ دے، اور کچھ لوگوں کو بول دے کہ تم اس میں سے لے لو، تو اس کے وہ انہیں مباح طریقے سے حاصل کیا اس کو، لیکن ان پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، کیونکہ وجوب کے وقت وہ مالک بنے بعد میں،
उनको उस शख्स ने दे दिया ना उनको, तो मालिक तो बने, लेकिन वजूब के वक्त पर वो मालिक नहीं थे, बल्कि मालिक उनका वजूब के वक्त पर कोई और था। इसी तरह बोलते हैं कि वो जिनको वला फीमा याखुज़ुहु उजरतन लिहसादी, खेती को काटने की वजह, कुछ लोगों को खेती काटने के लिए मुकर्रर किया गया और उसी में से अनाज ही उनको उजरत के तौर पर दिया गया। उनको कहा गया कि तुम हमारे लिए फसल में ये फसल है, इसको आप काट दो, तो उन्होंने काटा, तो उसी में से उनको उजरत दिया, तो वो भी उसकी ज़कात नहीं निकालेंगे। क्यों? मेहनत करके उसमें। उसके अलावा वजूब के वक्त पर वो मालिक तो बने, हाँ पहले आ चुकी थी। और ज़री पैदावार में एक बात ये भी है कि किसी आदमी ने एक बार उसकी ज़कात निकाल दी, उसके बाद फिर उसको निकालने की ज़रूरत नहीं। मिसाल के तौर पर एक आदमी के पास जो है 900 किलोग्राम अनाज फसल में पैदा हुआ, उसने उसकी ज़कात निकाल दी, उश्र या निस्फ उश्र जो भी थी निकाल दी, ठीक है। उसके बाद जो है अगला साल आया, उसके बाद अभी भी 800 किलोग्राम ज़कात अनाज मौजूद है, 800 किलोग्राम समझिए, फिर 600 किलोग्राम अनाज मौजूद है, बिका नहीं, तो उसकी ज़कात निकालेगा नहीं निकालेगा? वो नहीं निकालेगा, उसकी ज़कात वो नहीं निकालेगा, क्योंकि वो ज़री पैदावार के हिसाब से उसकी ज़कात निकाल चुका है। तो उनमें एक बार ज़कात निकालने के बाद फिर उसको ज़कात निकालने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद बोल रहे हैं वला युदम्मु सिन्फु मिनल हब्बि व समरी, और एक सिन्फ के या एक जिन्स के अनाज को दूसरे जिन्स के अनाज के साथ नहीं मिलाया जाएगा निसाब की तकमील के लिए, और एक सिन्फ के फलों को दूसरे फलों के साथ नहीं मिलाया जाएगा। मिसाल के तौर पर किसी आदमी के पास, अच्छी तरह गौर कीजिए, किसी आदमी के पास 500 किलो गेहूँ है और उसके बाद जो है फिर दूसरी तरफ जो है 300 किलो चावल है, तो फसल में जो उसके पास फसल पैदा हुई 500 किलो गेहूँ पैदा हुए और 300 किलो चावल पैदा हुए, दो में से कोई भी निसाब को नहीं पहुंचता, नहीं ना। अगर दोनों को मिला दिया जाए निसाब को पहुंच जाएगा, ये 500 या 300, जब 652 निसाब है, जब वो 800 हो जाएंगे, तो बोल रहे कि ज़कात की निसाब की तकमील के लिए दो अलग जिन्सों को नहीं मिलाया जाएगा। जैसे कि सोने को चांदी के साथ नहीं मिलाया जा सकता, वैसे दोनों अलग अलग जिन्स है, ये चावल है और ये गेहूं है, तो निसाब की तकमील के लिए दोनों को नहीं मिलाया जाएगा। इसी तरह फलों में भी इसके पास खजूर है, उसके पास किशमिश है, खजूर 300 किलो है, किशमिश जो है 500 किलो है, ना तो इसमें ज़कात वाजिब है ना तो उसमें ज़कात वाजिब है, लेकिन दोनों को अगर मिला दिया गया तो निसाब को पहुंच जाएंगे, लेकिन नहीं मिलाया जाएगा क्योंकि दोनों की जिन्स अलग है। जी आप क्या बोल रहे थे? जी कुछ अनाज की किस्म होती है, अगर एक ही किस्म की हो, मसलन कोई मिसाल दीजिए। अब हम तो गेहूं और चावल की मिसाल दिए जी, आगे बात करेंगे हम लोग, पहले इसको समझेंगे जो हम लोग पढ़े हैं। जी हाँ, वाज़ेह है। दो अलग अलग जिन्स के अनाज को निसाब की तकमील के लिए एक नहीं किया जाएगा। इसी तरह दो अलग अलग जिन्स के फलों को, जैसे खजूर और जो है किशमिश अंगूर हैं, उनको निसाब की तकमील के लिए मिलाया नहीं जाएगा, बल्कि उनको अलग ही रखा जाएगा। मगर ये कि ऐसी जिन्स है जिसकी अनवा मुख्तलिफ हैं, ऐसी कोई जिन्स की चीज़ है जिसकी अनवा मुख्तलिफ हैं, तो उसके लिए वो मिसाल दे रहे हैं इल्ला अन यकून सिन्फन वाहिदन, मगर ये कि कोई ऐसी सिन्फ हो मुख्तलिफ अनवाए जिसके अनवा मुख्तलिफ हो, किस्में मुख्तलिफ हों। जैसे कि खजूर है वो, लेकिन खजूर की किस्में मुख्तलिफ हैं, सुक्करी है और फिर जो है अंबरी है, अजवा है, वगैरह वगैरह खजूरें हैं, वो सब थोड़ी थोड़ी हैं। मतलब समझिए कि ये 100 किलो है, वो 100 किलो, वो 100 किलो है, लेकिन वो सब अगर मिला दिए जाएंगे तो निसाब को पहुंच जाएंगे। तो बोल रहे हैं कि उनको मिलाया जाएगा क्योंकि वो एक ही चीज़ है। लेकिन उनकी ज़कात के निकालने का तरीका क्या होगा? अच्छे वाले निकाल सकते नहीं, हर एक में से उसकी ज़कात निकालेंगे। मतलब कि किसी में से 5 किस्म की खजूरों को मिला दिए निसाब के लिए, 5 किस्म की खजूरों को मिलाकर निसाब मुकम्मल हो गया, तो हर किस्म की खजूरों में से उतनी ज़कात निकालेंगे, 10वां हिस्सा या 20वां हिस्सा जो भी है, यानी 100 सुक्करी में से 20वां हिस्सा, फिर इसी तरह 100 अंबरी में से 20वां हिस्सा, इसी तरह हर एक में से अलग अलग निकालेंगे। वाज़ेह है? जी हाँ, अरे मजमूई हैसियत से 600 उसके पास निसाब को पहुंच गए, लेकिन उसने सिर्फ सुक्करी में से पूरी ज़कात निकाल दी, ये नहीं होगा, बल्कि हर एक में से निकाल। इसलिए ज़कात खजूरों की निकाली या उसके खजूरों की निकालेगा, पैसे देने नहीं, खजूरों की ज़कात निकालेगा, लेकिन हर किस्म की खजूरों में से ज़कात निकालेगा, 20वां हिस्सा या फिर 10वां हिस्सा जो भी उस पर वाजिब है। इसलिए कह रहे हैं कि अखरजा मिन कुल्ली नौइन ज़कातहु, हर किस्म में से उसकी ज़कात निकालेगा। वाज़ेह है? लेकिन वो इन पहले पढ़ा कि अगर किसी काम के लिए कोई ज्यादा दे देता है तो वो ज्यादा अच्छा है, तो अगर हमारे पास मुख्तलिफ जो है अनवा है, लेकिन हम जो ज्यादा अच्छी वाली खजूर है वो आगे आ रहा है, इसीलिए बोल रहे हैं कि वो इन अखरजा जयीदन, लेकिन अगर वो जो है
अच्छी नौयत की खजूरें निकाल देता है अनिर रदी मामूली खजूरों के मुकाबले में, तो जायज़ हो जाएगा, क्योंकि लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, बेहतर चीज़। लेकिन ज़कात के निकालने का तरीका ये है कि हर किस्म की खजूर में से वो ज़कात निकालेगा, 20वां हिस्सा या 10वां हिस्सा। लेकिन अगर वो अच्छी किस्म की खजूरें पूरी की पूरी निकाल देता है, लेकिन रद्दी किस्म की निकालना जायज़ नहीं है, पूरी की पूरी मामूली किस्म के। मामूली जब सोने चांदी की हम ज़कात निकालते हैं तब तो हम अच्छे वाले तो निकाल सकते हैं। तो इससे हम पैसे क्यों और आवाज़ जायज़ का मतलब जायज़ा जायज़ है, जायज़ है। हाँ जायज़ हो जाएगा। किसी ने रद्दी खजूरें ला के रख दी थी, इसीलिए आयत उतरी ना। जी हाँ, क्या सवाल समझ में नहीं है क्योंकि आवाज़ यहाँ बहुत जिस तरह सोने चांदी की जब हम ज़कात निकालते हैं तो हम मतलब एक मिनट ज़रा मैं सवाल सुन रहा हूँ जी। तो वो हम पैसे की सूरत में देते हैं। नहीं, आवाज़ नहीं आई क्योंकि इधर कुछ बात हो रही थी तो आवाज़ नहीं पहुँची मुझ तक। जी, जब हम सोने चांदी की निकालते हैं ज़कात तो हम पैसे की सूरत में देते हैं ना। जी तो हाँ, ये जब फल वगैरह की निकाल रहे हैं तो क्या हम पैसे की सूरत में नहीं दे सकते? राजे मसलक ये है कि फलों की ज़कात या अनाज की ज़कात उसी किस्म में से निकालेंगे, जिस माल की ज़कात हम निकालते हैं उसी माल में से निकालेंगे, उसी नौयत का माल निकालेंगे। इल्ला ये कि अगर ज़कात वसूल करने वाले ये मसलिहत समझते हैं कि उनको पैसे की सूरत में जाए तो बाज़ उलमा उसकी इजाज़त देते हैं। लेकिन असल ये है कि जिस चीज़ की ज़कात हम निकाल रहे हैं उसी चीज़ में से निकालेंगे, चाहे वो सोना चांदी। चाहे वो सोना हो या चांदी हो या फिर जो है बहीमतुल अनाम हो, चौपाए हों या फिर ये खेत हों। अन्नव सानी अलमहदन, ये वादे हो गया ना। जी जी। मादनियात फमन इस्तखरजा मिन मादिनिन निसाबन, जिसने निकाला मादनियात में से उतना जो निसाब को पहुँचता हो, निसाबन मिन ज़हबी व अबिल फिद्दती, उतना सोना या उतनी चांदी जो निसाब को पहुँचता हो। निसाब क्या है सोने का? सोने का 85 ग्राम है और चांदी का 595 ग्राम है, 595 ग्राम। यानी उसने जो है ज़मीन से इतना सोना निकाला ज़मीन से कि वो 595 ग्राम से ज़्यादा चांदी है या 85 ग्राम से ज़्यादा सोना है, तो उसमें से ज़कात निकालेगा। लेकिन मादनियत की ज़कात जो है 10% या 20% नहीं है, अगरचे कि खारिजी मिनल अर्द है, लेकिन उसमें है 2.5% है, 2.5% है। सोने तिजारती माल की तरह यानी ज़कात के लिए निसाब भी सोने निसाब को पहुँचे, लेकिन उसमें से निकालेगा कितनी? 2.5% निकालेगा। तो तो ये बता रहे हैं कि सोना और चांदी इतना निकाले जो निसाब को पहुँचता हो, ठीक है, या फिर जो है दूसरी चीज़ें इतनी निकाले जो सोने चांदी की कीमत को पहुँचती हो। औ मा कीमत ज़ालिका मिनल जवाहिरी, जवाहिर हो या गंधक हो या पीतल हो या लोहा हो, कोई भी दूसरी चीज़ हो, इतनी मिकदार में निकाला कि वो सोने की कीमत के बराबर हो गई या उससे ज़्यादा हो गई, तो उसमें वो ज़कात निकालेगा। फ़फ़ीहा फ़अलैहि ज़कात, तो वो उसमें से ज़कात निकालेगा। और ज़कात कितनी निकालेगा उसका जिक्र उन्होंने नहीं किया, हालांकि बहुत अहम बात थी। ज़कात निकालेगा कितनी? ज़कात निकालने की मिकदार कितनी है? 2.5% है। और वो बोल रहे हैं कि उसी वक्त निकालेंगे जबकि उनको साफ़ कर दिया जाए, उनको साफ़ और शफ़ाफ़ कर दिया जाए। वला युखरिजु इल्ला बाद सबकी व तस्फियती, अरे उस ज़मीन में रहने की वजह से मादनियात में वो चीज़ें जो ज़मीन की जिससे उसमें शामिल हो जाती हैं, उनको निकालने के बाद उसमें से ज़कात निकालेंगे। पूरी कीमत पे हो गया अगर निसाब से अगर बढ़ गया तो वो पूरा सपोज निसाब से पैसे निकालेंगे या फिर सेम वही चीज़ निकालेंगे, पैसे जो चीज़ निकल रही है वही निकालेंगे। सोने पे निकाल सकते हैं, लेकिन कीमत का अंदाज़ा फिर उसके साफ़ करने के बाद लगाएंगे, क्योंकि अगर वो मिट्टी वगैरह होगी तो उसका वजन कुछ और होगा, जब उसको साफ़ कर देंगे तो उसका वजन कुछ और हो जाएगा। 85 ग्राम का निसाब हो गया तो 100 ग्राम हो गया। हाँ, तो उसमें क्या करें 85 निकाल के जो रिमेनिंग होता है उस पे ये करेंगे? नहीं, पूरा हम इससे पहले पढ़ चुके हैं, पूरा हिसाब एक साथ होगा, यानी पूरे 100 का निकालेंगे, पूरे 100 का 2.5%। जी, जो सोने चांदी का निसाब है, सोने चांदी का जो निसाब है वही है, सोने चांदी का निसाब या सोने चांदी की कीमत का हिसाब। सोने का निसाब यानी सोने में ज़कात के वाजिब होने के लिए 20 मिसकाल है, और 20 मिसकाल होते हैं 85 ग्राम सोना। तो उतने ही मादनियात निकाले जो 85 ग्राम सोने के बराबर है कीमत में। देखिए सोने में तो डायरेक्ट सोना, दूसरी चीज़ों में कीमत, सोने चांदी की कीमत, ठीक है, उसमें वजन नहीं, क्योंकि वो तो बहुत फर्क आएगा। हाँ जी हाँ, उसमें वजन नहीं, कीमत का एतबार होगा। सोने चांदी में वजन का एतबार होगा, लेकिन दूसरी चीज़ों में 85 ग्राम की कीमत के बराबर, 85 ग्राम की कीमत के बराबर। उसके बाद कहते हैं वला शै फिल लुअली वल मरजान, और मोती में,
मरजान में, अंबर में, मछली में कोई ज़कात नहीं, इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ये सारी चीज़ें पाई जाती थीं, लेकिन ये साबित नहीं कि आपने उसकी ज़कात लेने का हुक्म दिया हो, ना तो सहाबा ने, खुलफाए राशिदीन ने उनकी ज़कात ली। तो इस बात की दलील है कि जिन चीज़ों की ज़कात का शरीयत ने हुक्म नहीं दिया तो उनकी ज़कात नहीं ली जाएगी, क्योंकि ये चीज़ें क्या हैं, ताबुदी हैं, जैसे बताई गई वैसे ही करें। तो वो चीज़ें चाहे कितनी भी कीमती क्यों ना हो, उनकी ज़कात नहीं ली जाएगी, इल्ला ये कि कोई शख्स जो है हीरों का कारोबार करता हो या फिर जो है मछलियों का कारोबार करता हो, तो तिजारती माल की तरह उसकी ज़कात होगी। वो कारोबार करता है तो उसके बदले में उसको जो माल मिलेगा या फिर जो तिजारत करेगा तो उसका पूरे माल, तिजारती अमवाल की ज़कात का हम लोग आगे हुक्म पढ़ेंगे, तो उसके तिजारती माल की तरह ज़कात होगी, लेकिन बज़ाते खुद उस चीज़ में ज़कात नहीं है, उस चीज़ में ज़कात नहीं है। लेकिन अगर उसकी तिजारत करेगा तो फिर उसके पैसों पर ज़कात होगी। उसका मतलब बताइए सफाई के बारे में। ये सबक और तस्फिया एक ही माने में उसका तस्फिया करना, उसको साफ करना। वला शैअ फी सैदिल बर्री वल बहरी, इसी तरह जो शिकार है इंसान करता है, चाहे वो बर्री हो या बहरी हो, समंदरी हो, तो उसमें भी ज़कात नहीं, क्योंकि इसका भी कोई सबूत नहीं। अब आखिरी चीज़ है वो रिकाज है। रिकाज कहते हैं वो दफीने, वो ख़जाने जो ज़माने जाहिलियत में दफन कर दिए गए हों। देखिए, मैं ज़माने जाहिलियत, इस्लाम से पहले का लफ्ज़ ख़ास कर रहा हूँ, इस्लाम से पहले का लफ्ज़, क्योंकि उसी को हम उसी को रिकाज कहते हैं। मुसलमानों ने जो दफन किया है उसको रिकाज नहीं कहते। देखिए ज़रा गौर से सुनिए, रिकाज कहते हैं उन ख़जाने को जो इस्लाम से पहले या फिर गैर मुस्लिमों ने दफन कर दिया हो, वो ख़जाने जो जाहिलियत के ज़माने में ज़मीन में दफन कर दिए गए हों, उनको कहते हैं। क्योंकि अगर कोई ख़जाना हमको मिला, उसकी अलामतों से ये मालूम होता है कि किसी मुसलमान ने छुपाया होगा, किसी मुसलमान ने उसको छुपाया होगा, तो उसका एतबार लुक़ता की तरह होगा। जो गिरी हुई चीज़ इंसान को मिल जाती है, 1 साल तक उसका ऐलान करेंगे, अगर उसका मालिक आ गया तो ठीक है, नहीं तो फिर जिसको मिला है वो चीज़ वो इस्तेमाल कर सकता है। वो उसका एतबार रिकाज की तरह नहीं होगा। रिकाज जो है गैर मुस्लिमों ने जो ज़मीन में दफना दिया है उसको कहते हैं, क्योंकि वो बग़ैर जंग के जो माल हासिल होता है माल फ़ै की तरह है। काफिरों से मुसलमानों को जो माल हासिल होता है वो 2 तरह का है। एक माल गनीमत है जो जंग के नतीजे में हासिल होता है, ठीक है, और दूसरा माल फ़ै है जो बग़ैर जंग के हासिल हो जाता है, यानी वो लोग भाग जाते या फिर सुलह हो जाती कुछ पैसों के बदले में, उसको कहते हैं माल फ़ै। तो माल फ़ै की तरह है जो बग़ैर किसी जंग के हासिल होता है। तो उसमें से वो इसलिए उसको बोल रहे हैं कि उसकी ज़कात भी जो है इनको नहीं देंगे। किसको? ज़कात के मद में जिन लोगों को देते हैं ज़कात के मुस्तहिक़ीन को नहीं देंगे, बल्कि फ़ै के मुस्तहिक़ीन को देंगे। फ़ै के मुस्तहिक़ीन 5 है और ज़कात के मुस्तहिक़ीन 8 है। तो इसलिए अब यहाँ इस सबक से समझिए, वो फिर रिकाजी और वो ख़जाने जो काफिरों ने दफन कर दिए हों, अल-खुमुसु 5वां हिस्सा निकालेंगे। यानी अगर किसी के पास किसी को जो है 100 दिरहम मिलेंगे तो उसमें से कितने निकालेगा वो? 20 दिरहम, 5वां हिस्सा है ना, यानी 100 के 5 हिस्से करेंगे तो 20 दिरहम निकालेगा। सबसे ज़्यादा इसी में है ज़कात, क्योंकि बग़ैर मेहनत की हासिल होती है, तो उसमें खुमुस निकालेगा। और कहते हैं कि अय्या नौइन कान मिनल माल, किसी भी किस्म का माल हो, चाहे वो सोना हो, चाहे चांदी हो, चाहे दीनार हो, चाहे दिरहम हो, या फिर जो है दूसरी चीज़ें जिसको माल माना जाता हो, किसी भी किस्म की चीज़ हो, उसमें कोई शर्त नहीं कि फला फला माल हो, कोई भी चीज़ मिल जाए। कल्ला और कसरा, उसमें निसाब का भी एतबार नहीं है, चाहे वो ज़्यादा हो या छोटा, निसाब का भी एतबार नहीं है उसमें, क्योंकि उसको बग़ैर मेहनत के मिला है। उसके बाद कहते हैं लिअहलिल फ़ैई, ये इस बात को समझिए कि ये जो माल है वो असहाबे फ़ै को देंगे, ज़कात के मुस्तहिक़ीन को नहीं देंगे। ज़कात के मुस्तहिक़ीन लिल फ़ुक़राई वल मसाकीन वल आमिलीन अलैहा, ये है 8 मुस्तहिक़ीन है, असहाबे फ़ै को देंगे। फ़ै का जिक्र अल्लाह तबारक ने कहाँ किया? सूरह अल-अनफ़ाल में क्या फरमाया? वमा अफ़ा अल्लाहु अला रसूलिही मा अफ़ा अल्लाहु अला रसूलिही मिन अहलिल क़ुरा फ़लिल्लाहि वलिर्रसूली। ये माल फ़ै जो देंगे 5वां हिस्सा इनको होगा, वलिल्लाहि वलिर्रसूली वलिज़िल क़ुरबा, क़राबतदार, अल्लाह उसके रसूल के लिए। अल्लाह उसके रसूल के मतलब ये कि मुसलमानों की मसलिहतों के काम में खर्च किया जाएगा। वलिज़िल क़ुरबा, और जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़राबतदार है उनके लिए, ठीक है। अल-फ़ै क्या होता है? माल फ़ै वो माल जो काफिरों से बग़ैर जंग के हासिल होता है। और तीसरा है वल यतामा, यतीमों को देंगे। चौथा है मसाकिन, मिस्किनों को देंगे। 5वां है इब्न सबील, 5वां है मसाकिन मिस्किन, और इब्न सबील ये 5वां है मुसाफिर। जी नहीं, माल गनीमत वो माल है जो जंग में मिलता है।
ہاں مال غنیمت اور مال فی وہ اسی پر مال غنیمت کے بارے میں جو جنگ کے جو کمانڈر ہیں یا پھر جو خلیفہ ہے ان کی مرضی ہوگی، چاہے تو پورا کا پورا فوج میں تقسیم کر دیں یا اس کا کچھ حصہ مسلمانوں کی مصلحت کے نکالے. مال فی کی طرح تقسیم نہیں کریں گے اس کو، مال غنیمت الگ الگ، اس کی تقسیم کا طریقہ الگ ہے. یا تو اس طرح کریں گے، ان کی مرضی پر ہے وہ. مال غنیمت مکمل طور پر فوج میں تقسیم کر دیا جائے یا پھر اس کا کچھ حصہ فوج میں تقسیم کرے، کچھ حصہ مسلمانوں کی مصلحت کے لے رکھیں، دونوں چیزیں جائز ہیں. لیکن فی کی تقسیم کا یہ طریقہ ہے. فی کی تقسیم میں 5واں حصہ نکالیں گے. یہ جو 5واں حصہ نکالتے ہیں اس کے 5 مستحق ہیں. پہلے مستحق اللہ اس کے رسول ہیں، مطلب ہے کہ مسلمانوں کی مصلحتوں کے کام ہیں. دوسرے مستحق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہیں، بنو عبد المطلب اور بنو ہاشم کے لوگ. اور تیسرے مستحق ہیں یتامہ، یتیم لوگ ہیں. چوتھے ہیں مسکین ہیں، اور 5ویں ہیں مسافر ہیں. تو ان کے لیے خرچ کیا جائے گا. باقی کہتے ہیں وہ باقی ہی لواجدہ، اور جو باقی ہے کتنے حصے باقی رہ گئے؟ 4 حصے اس کے پانے والے کو مل جائیں گے. 80% وہ لے گا، 20% جو ہے وہ مال فی کے طور پر نکال دے گا. جی جو 4 حصے بچ گئے، کیونکہ اس نے جو ہے 5واں حصہ نکال دیا نا، بچ گئے کتنے حصے اس کے پاس؟ 4 حصے، تو وہ لے لے گا. وہ باقی ہی، اور رکاز کا باقی حصہ، رکاز کا باقی حصہ لواجد ہی، اس کے پانے والے کو. واجد مانے پانے والے کو. ایک بار پھر دیکھیے، وہ پھر رکازی، اور زمین میں ملنے والے کافروں کے خزانوں میں الخمس، زکوٰۃ واجب ہے 5واں حصہ. ای نوع کان من المال، خواہ وہ کسی بھی قسم کا مال ہو، کوئی شرط نہیں کہ فلاں قسم کا مال ہو، کوئی بھی قسم کا مال ہو. قل و کثرا، اور اس کے نصاب کی بھی شرط نہیں، چاہے زیادہ ہو یا کم ہو. اور وہ دیا جائے گا کس کے لیے؟ لاہل الفی، فی والوں کو دیا جائے گا. وہ باقی ہی لواجدہ، اور جو باقی ہوگا وہ اسے پانے والے کو مل جائے گا. لیکن آج کے زمانے میں اللہ اور رسول کے لیے دیں گے، کیسے دیں گے؟ مسلمانوں کی مصلحتوں کے کام میں خرچ کریں گے. اس کا مطلب جہاد نہیں ہے اللہ کے؟ ضروری نہیں ہے، ضروری نہیں. رسول اکرم نے فرمایا کہ وہ خمس اللہ اس کے رسول کے لیے ہے، اور وہ بھی تمہاری طرف لوٹا دیا جاتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ مسلمانوں کی مصلحتوں کے کام میں اس کو، جیسے ان کی روڈ کے بنانے کے لیے، ان کے لیے مہمان خانے بنانے کے لیے، ان کے لیے پانی کے انتظام کرنے کے لیے، کسی بھی رفاہی عامل کے کام میں لگایا جا سکتا ہے. جیسے دوسرا سے یہ جو آیت آپ نے فی والی بتائی ہے، یہ سورہ حشر کی ہے. ہاں جی ہاں، صحیح ہے بالکل. اچھا، یہ ہم نے سنا تھا جس وقت انڈیا پاکستان بنا اور جب یہ تقسیم ہو گئی تو بہت سے لوگ کہتے تھے کہ یہ جو ہندو لوگ تھے، ان لوگوں نے بہت سے دیواروں کے اندر جو ہے نا اپنے خزینے چھپائے، تو بہت سے لوگوں کو مال ملا. تو یہ رکاز اسی سلسلے میں آئے گا نا، کہ ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی؟ اسی میں آئے گا. جی زمانے جاہلیت کو خاص اس لیے کیا کہ وہ کافروں کی طرف اشارہ کرنے کے لیے، ورنہ وہ ہر وہ خزانہ ہو جائے گا جسے کافروں نے چھپایا ہوگا. یہ جو آیت جو ہے مال فی کی تقسیم کے سلسلے میں ہے، وہ سورۃ الحشر کی آیت نمبر 7 ہے. مال فی کی تقسیم کے سلسلے میں جو آیت ہے وہ سورۃ الحشر کی آیت نمبر 7. سورۃ الحشر آیت نمبر 7. انما الصدقات للفقراء والمساکین، فقراء آئے گا. وہ اہل تشیع جو ہیں یہ ابھی بھی خمس دیتے ہیں، یہ کیا ہے ان کے نزدیک؟ کس میں سے خمس دیتے ہیں؟ وہ زکوٰۃ نہیں دیتے، وہ خمس دیتے ہیں آج بھی. وہ کیا ہے؟ جی آواز جو ہے ذرا سا بلند کیجئے، کیونکہ ادھر جو باتیں ہو رہی ہیں نا تو مجھے آواز سنائی نہیں دے رہی صاحب. ہاں یہ جو ہے سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 60 ہے. دیکھیے آیت نمبر 60 ہے، انما الصدقات للفقراء، زکوٰۃ ہے فقراء کے لیے. ایک فقراء ہو گئے، نمبر 2 مساکین ہے، مسکین ہو گئے، نمبر 2 مسکین ہو گئے، اور نمبر 3 ہے والعاملین علیہا، زکوٰۃ کی اصولی اور اس کے جمع پر مقرر لوگ، زکوٰۃ کی اصولی اور اس کے جمع کا کام کرنے والے. عاملین، یہ زکوٰۃ کے کام کے، زکوٰۃ کا کام انجام دینے والے، یہ لکھ لیجیے، زکوٰۃ کا کام انجام دینے والے عاملین، زکوٰۃ کا کام انجام دینے والے عاملین. تو 3 ہو گئے نا. والمؤلفۃ قلوبہم، اور جن کی تالیف قلب، جن کو اسلام کی قریب کرنا مقصود ہو، جن کی تالیف قلب مقصود ہو، چاہے وہ کافر ہوں ان کو اسلام کے قریب کرنا چاہے، یا پھر ابھی بھی مسلمان ہوئے ہیں لیکن مالی مدد نو مسلموں کو،
नौ मुस्लिमों को या फिर उन काफिरों को जो मुसलमान हो सकते हैं माल के बदले में, उनको बोलते हैं मुअल्लफतुल क़ुलूब, मुअल्लफतुल क़ुलूब, जिनकी तालीफ़ क़ल्ब मक़सूद हो। ये चौथे हो गए। पाँचवा है वफ़िर रिक़ाबी, गुलामी से गुलामों को आज़ाद करने के लिए, गुलामों को आज़ाद करने के लिए, कैदियों में छुड़ाना भी वफ़िर रिक़ाबी, उसी में आ जाएगा, उसी में आएगा। वल गारिमीना, और कर्ज़दारों को देंगे, ये छठा हो गया। और सातवां हो गया फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने वालों को। आठवां हो गया वब्नी सबील, मुसाफिरों को। तो ये 8 मद हैं ज़कात के। जो फी सबीलिल्लाह आपने बताया, फी सबीलिल्लाह अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने में जिहाद जरूरी है मस्जिद में, या फी सबीलिल्लाह सुन्नत किसी भी इस तरह से मामले में जाना नहीं, कुरान की ये आयत बता रही है कि उससे बड़ा जिहाद ही है, क्योंकि अगर किसी भी मामले में होता तो फिर 7 का अलग से जिक्र करने की बात नहीं होती। ये कह दिया जाता है किसी भी नेक काम में दे दो, बोलने की जरूरत नहीं होती कि फ़कीर को, मिस्कीन को, कर्ज का, इनके अलग से जिक्र की जरूरत नहीं होती। अल्लाह तबारक तआला ने उनको जो है एक मद के तौर पर जिक्र किया, उमूमत के तौर पर जिक्र करता तो फिर 7 के जिक्र का फ़ायदा ही नहीं होता। तो इसलिए राजिह कौल ये है कि फ़ी सबीलिल्लाह से मुराद अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने वाले ही हैं। वब्नी सबील, मुसाफिर। नहीं, काफिर हुकूमतें मुसलमानों को देती हैं। तो मुसलमानों में बड़ी बेचैनी हुई थी इस बात की वजह से कि मुसलमानों के अपने हालात इतने बुरे हैं और सऊदी हुकूमत उनको तोहफे दे रही है। तो ये तारीफ़ कल्ब के तौर पे अगर दे रहे हों तो मतलब ये मुसलमानों को ये हो सकता है ना कि नहीं दे सकते। ये क्यों दिया ट्रम्प को, पहले आप ये बताइए। नहीं, असल में तालीफ़ क़ल्ब, देखिए तालीफ़ क़ल्ब के मक़ासिद में एक मकसद वो भी हो सकता कि काफिरों के शर से बचना, काफिरों के शर से बचना, ये भी तालीफ़ क़ल्ब के मक़ासिद में से एक मकसद हो सकता। लेकिन जाहिर है कि वहाँ मकसूद तालीफ़ क़ल्ब नहीं था। तब ये वो तो उलट हो गया साहब, मुनासिब नहीं, नहीं अफराद हैं उसके। आपकी बात तो सही है, उनको देना, उनके शर्त से बचना। इधर ट्रम्प को दिया और 4-5 दिन के बाद इन लोगों ने कतर का मुआसरा कर लिया। वो तो उल्टा हो गया, वो तो 4 महीने हो गया। अब वो सऊदिया का हलीब जो आता था वो भी हम लोग नहीं पीते। उन लोगों ने जो दिया है उसका मकसूद जो है मुसलमान नहीं है, उसका मकसूद उनका अपना मुल्क है। बस जो कुछ भी उन्होंने दिया है अपने मुल्क, अपने फ़ायदे, अपने मकसद के, अपने मुल्क की हालात की रोशनी में किया है। उम्मत की तरफ से नुमाइंदगी नहीं की उन्होंने। वो एक मुल्क है सऊदी अरब, अच्छा, उनकी अपनी मुल्क की मसलिहात उनके सामने है, तो उसका कोई एतबार दूसरे मुसलमानों से नहीं है। तो वो जो भी करते हैं फैसले उनके अपने मुल्क से उसका ताल्लुक। तो उसका मतलब ये है कि वो मुसलमानों के फ़ायदे के लिए दिया गया हो, उसको हम तालीफ़ क़ल्ब लेंगे, मुश्किल है उसका हुक्म लगाना। तालीफ़ क़ल्ब के तौर पर दिया गया हो उसका हुक्म लगाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि तालीफ़ क़ल्ब उस वक्त दी जा सकती जबकि वाकई इस्लाम का मुसलमानों को कोई फ़ायदा हो, वहाँ उसको पेश नज़र नहीं रखा गया। वैसे ये भाई भी क्यों झगड़े, इसकी क्या वजह? चर्चिल को इससे ज्यादा दिया और दिया। अच्छा, तमीना जी